women of Chandigarh welcome you to this 9th session of Kalam series with author Lalit Kumar ji. Kalam is the brainchild of social activist Sandeep Bhutoria, who is also the trustee of Prabha Khaitan Foundation, who started Kalam in India to promote primarily Hindi and regional literature in the country as an interactive platform to the authors and poets with selective prominent individuals. The Kalam series was launched in Jaipur, Raipur, Patna, Udaipur, Hyderabad, Bangalore, Ajmer, Mumbai, Bhubaneswar, Ahmedabad, Ranchi, Kolkata and London and Chandigarh. The idea is to connect with 25 to 30 selected people and to invite them to interact with a guest author over a freewheeling interactive session. There are no book releases or sales activities at these events. The complimentary copies of the books signed by the author are given to the guests. We also request you all to kindly RSVP for our future events. As part of the series, the best 3 questions asked will also get a specially designed bookmark. We take this opportunity to specially thank Hyatt Chandigarh for collaborating with this event. I now request Ms. Isha Sehgal of Sales and Marketing, Hyatt Regency, to say a few words. To all of you, welcome to Hyatt Regency Chandigarh and all the literature lovers present here. It's always lovely to have you all here. On behalf of Hyatt Regency Chandigarh, it gives me immense pleasure to welcome Mr. Lalit Kumar to the hotel. It is lovely having you with us and I hope you are comfortable staying here. As you all are aware, Kalam series is an initiative of Prabha Khaitan Foundation in collaboration with Hyatt Regency Chandigarh and Ehsaas, a group of creative women in Chandigarh. It is my honor and privilege to have you all and welcome you all here. Let's hear about Mr. Lalit Kumar. There is a long list of what he does and how brilliant and excellent work he does. He is a blogger in Hindi and English. You have your own blog, sir. He writes in a variety of topics including technology, disability. He also published his memoir titled Vitamin Zindagi that we have here on the display today and we are very excited to get the copies. This was released in May 2019. In the book, he has openly recalled his life with polio in India's capital. Vitamin Zindagi has received a lot of commendation and very positive reviews. It is one of the most beautifully written account of how people with disabilities struggle in our Indian society and how many of them achieve success. They overcome their disabilities. He continues to write his blogs, techwekin.com and vcapable.com. He's also well known for other projects like kavitakosh.org, gadyakosh.org if I'm pronouncing it correctly, and Dashamlav YouTube channel. So please follow these channels and blogs, I will for sure. To be in conversation with him, we welcome Mr. Vijay Kapoor. He's a theatre director, actor, poet, story writer, critic, translator, sculptor, painter, and he's the current vice president of Abhinet. He has 37 years of theatre experience, primarily as a lead actor of Abhinet. Yes? Yes. He has also worked as an actor in many films and TV serials, Train to Pakistan, Salam, Apna Desh, Parai Lok, Ants, Party, Clash of Loyalties, Adarsh, etc. In '95, he represented the Inside Express Group as Indian Express Group as the world's largest theatre and dance festival at Avignon in France. He is also a well-known poet. We have a good combination of writers and poets here today. He has written over 5,500 poems. His poems have been published in many leading Indian literary magazines and newspapers. He is currently painting a series of his poems. He was awarded Chandigarh Sahitya Academy Award of Best Poetry Book for his collection of poems. Pahad, I'm sorry, can I? पहाड़ ही नहीं होते हैं पहाड़. पहाड़ ही नहीं होते हैं पहाड़. Wow. In 2013. His poetry work Pita or Amriya was awarded for a GIA by Chandigarh Sahitya Academy.
To take this session forward, I would like to welcome both of them to start this session. Please sit back, relax, and enjoy. Thank you. स्वागत है आप सभी सुधीजनों का। और मैं मशहूर हूँ प्रभा खैतान फाउंडेशन का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि लायक आदमी के साथ मैं बातचीत कर सकूँ। और प्रभा खैतान के सौजन्य से ये प्रोग्राम अक्सर होते रहते, सारे भारतवर्ष में होते हैं। और ये जाने माने लेखकों को और चर्चित किताबों को आपसे रूबरू करवाते हैं, और कई खास शहरों में ये कार्यक्रम चलते रहते हैं। चंडीगढ़ में भी अक्सर ये होते रहते हैं। धन्यवाद शालू जी, धन्यवाद मनीषा जी, और धन्यवाद दिव्या जी, और जिनका नाम मुझे नहीं पता उन सबका भी धन्यवाद। तो स्वागत है आज के दुल्हा ललित कुमार जी का, जिन्होंने पढ़ने वालों को विटामिन सी या विटामिन जिंदगी की बात करें से सामना कर पाया। ये इनकी किताब है जो आजकल बहुत चर्चित है, विटामिन जिंदगी। आज उन्हीं से रूबरू हुए हम, और इससे पहले कि मैं आप सबकी सहूलियत के लिए कोई महत्वपूर्ण प्रश्न करूं इनसे, ललित जी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहूँगा। विटामिन जिंदगी उस सफर की दास्तान है जो आसमाने से असाधारण हो जाता है। जद्दोजहद की पराकाष्ठा में आदमी अपने को किस कदर बदल सकता है, इसका अनुभव विटामिन जिंदगी, चलिए जे कह देते हैं, जे जिंदगी है, वो आप नुक्ता भूलिए। और प्यार और प्याज में फर्क करना है तो नुक्ते का ही फर्क है, नहीं तो वो प्याज हो जाता है। तो ये जो अनुभव है, ये इन्होंने उसको महसूस किया है, अनुभव से ही ये विटामिन जिंदगी जो है सामने आई है और खासी चर्चा में है। अब मैं थोड़ा सा इनके बारे में आपको बताऊंगा, और एक इन्हीं की किताब का एक अंश पढ़ के मैं सुनाऊंगा। उसके बाद हम बातचीत शुरू करेंगे, और जो कुछ भी बातचीत में निकलता जाएगा उस सबको बताते जाएंगे। जी, कि ललित कुमार जी के जीवन की कहानी विटामिन जिंदगी दे सकती है आपके जीवन को खास दिशा। मिसाल बन चुके ललित कुमार के जीवन का सफर असामान्य से असाधारण तक का सफर है। पोलियो जैसी बीमारी ने उन्हें सामान्य से असामान्य तो बना दिया, लेकिन अपनी मेहनत और जज्बे के बल पर उन्होंने स्वयं को साधारण भीड़ से इतना अलग बना लिया कि वे असाधारण हो गए। उनके इसी सफर की कहानी समेटे एक किताब आई है जिसका जिक्र मैंने अभी किया आपसे, विटामिन जिंदगी। एक बच्चा जिसके पैरों को 4 साल की उम्र में ही पोलियो मार गया, कैसे उससे जूझते हुए उसने समाज में अपना एक अहम मुकाम बनाया, ये किताब उसी की कहानी कहती है। जिंदगी में आने वाली तमाम चुनौतियों को लेखक ने किस तरह से अवसर बदला, ये उसी सकारात्मकता की कहानी है। ये किताब बताती है कि जिस तरह शरीर को विभिन्न विटामिन चाहिए, उसी तरह मन को भी आशा, विश्वास, साहस और प्रेरणा जैसे विटामिनों की जरूरत होती है, खासकर तब जब हमारा सामना समस्याओं, संघर्ष, चुनौतियों और निराशा से होता है। आज आलम यह है कि कविता कोश, गद्य कोश, weCapable.com, दशमलव और techwelking.com जैसी परियोजनाओं के संस्थापक ललित कुमार को दिव्यांगजन के लिए रोल मॉडल हेतु साल 2018 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। तालियां बनती हैं। पोलियो जैसी बीमारी, अभावग्रस्त किशोरावस्था के बावजूद अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं में काम कर चुके ललित विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं। इन दिनों दशमेव यूट्यूब चैनल और weCapable.com के जरिए देश भर के विकलांग जन या आप उनको दिव्यांग जन कह सकते हैं और अन्य जरूरतमंद लोगों की सहायता कर रहे हैं। पाठकों के लिए या सुनने वालों के लिए भी ललित कुमार के जीवन संघर्ष पर आधारित उन्हीं द्वारा लिखी एक पुस्तक विटामिन जिंदगी का एक अंश मैं पढ़कर सुनाऊंगा आपको। उसके बाद हम बातचीत आगे जारी रखेंगे। अब तो पथ यही है
ललित कुमार का ही उन्हीं की किताब से एक अंश है कि आज स्कूल में बहुत गहमा गहमी है। मैं 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूं और मेरी बोर्ड की परीक्षाओं में केवल 2 महीने शेष है। चूंकि 12वीं कक्षा स्कूल की अंतिम कक्षा होती है, इसलिए आज स्कूल में 12वीं कक्षा के छात्रों का विदाई समारोह आयोजित किया गया है। हर कोई विदा नहीं हो जाता। बहुत से विद्यार्थी बरस दर बरस इस समारोह की शोभा बढ़ाते रहते हैं। बहरहाल प्रथा के अनुसार 11वीं कक्षा के छात्र और स्कूल के अध्यापक गण 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए समारोह आयोजित करते हैं। दोपहर के 12 बज रहे हैं। धूप तेज पर सहनीय है। आज सुबह प्रार्थना के समय ही प्रिंसिपल महोदय ने 11वीं और 12वीं कक्षा के छात्रों को मैदान में ठीक 12 बजे इकट्ठा होने का निर्देश दे दिया था। सभी छात्र इसमें खुले मैदान में पंक्तियां बनाए बैठे हैं। कुछ एक ने तो पतलूनों को मिट्टी से बचाने के लिए कॉपियों के पन्ने फाड़ कर नीचे बिछाए हुए हैं। मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि चाहे जितना बचाओ, मेरे कपड़ों पर तो मिट्टी लग ही जाती है। मैं पूरे गर्व के साथ 12वीं कक्षा की उस पंक्ति में बैठा हूं जिसमें बस गिने चुने विद्यार्थी हैं। ये 12वीं कक्षा में विज्ञान पढ़ने वालों के छात्रों की पंक्ति है। हमारे स्कूल में विज्ञान का विषय केवल 2 वर्ष पहले ही आया और विज्ञान पढ़ने वाली पहली कक्षा में मैं भी शामिल हूं। विज्ञान को मेरे स्कूल में एक महान और कठिन विषय माना जाता है। इसी वजह से हम विज्ञान के छात्रों को एक अलिखित विशेष दर्जा प्राप्त होता है। सभी अध्यापकगण हमारी और बहुत स्नेह और आशा की दृष्टि से देखते हैं। हमसे आशा की जाती है कि हम बोर्ड की परीक्षा में अच्छे नतीजे लाकर स्कूल का नाम रोशन करेंगे। इस तरह की विदाई समारोह में अधिकांश छात्रों की रुचि का विषय एक समोसा, एक बर्फी, एक केला और एक संतरा होते हैं, जो समारोह के बाद छात्र को लिफाफे में डालकर दिए जाते हैं। आयोजन के कारण इसके महत्व और अध्यापकों के भाषण इत्यादि में अधिकांश छात्रों को कोई रुचि नहीं होती है। खाने पीने में होती है रुचि। और ये लीजिए, भाषण आरंभ हो गए हैं और प्रिंसिपल महोदय और 12वीं कक्षा के क्लास टीचर छात्रों को अपनी अपनी आशाओं के बारे में बता रहे हैं। ज्यादातर छात्रों को इन आशाओं से कोई सरोकार नहीं है। वे एक दूसरे से तभी आवाज में बातचीत करने में मशगूल हैं। करीब 20 मिनट के बाद आखिरकार भाषण समाप्त हो गए और अब छात्रों का उत्साह बढ़ाने के लिए कुछ पुरस्कारों की घोषणा की जा रही है। ऐसे पुरस्कार के रूप में अक्सर पेन, कॉपी या जियोमेट्री बॉक्स दिया जाता है। मुझे आज तक कभी कोई पुरस्कार नहीं मिला। पिछले 12 वर्षों में मैं कभी कक्षा में सबसे अधिक अंक नहीं ला सका। मैं खेलकूद में भी भाग नहीं ले पाता था और किन्हीं अनजान कारणों से मैं शिक्षकों के सबसे प्रिय छात्रों में भी नहीं रहा। मंच पर एक एक करके पुरस्कार विजेताओं को बुलाया जा रहा है। मैं हर उद्घोषणा को धड़कते दिल से सुन रहा हूं कि शायद मेरा नाम भी पुकारा जाए। लेकिन जैसे जैसे मंच पर रखी मेज से पेन सेट, कॉपीज और ज्योमेट्री बॉक्स एक एक करके अन्य छात्रों को बंट रहे हैं, मेरी आशा कमजोर पड़ती जा रही है। मैं विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की विशिष्ट पंक्ति में बैठकर गौरव का अनुभव तो कर रहा हूं, लेकिन एक खुशी जिसके लिए मैं पिछले कई सालों से लालायित रहा हूं, वो एक बार फिर मेरे हाथों से फिसलती हुई महसूस होती है। हालांकि मैं स्कूल में हुए टेस्ट में दूसरे स्थान पर रहा और मैंने मोटे तौर पर पिछले 2 वर्षों में विज्ञान और अंग्रेजी में अन्य छात्रों की बनिस्बत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन पुरस्कार वो तो मुझे कभी मिलता ही नहीं। और इस वर्ष के सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार जाता है ललित कुमार को। मंच पर पुरस्कारों की घोषणा कर रहे अध्यापक ने अचानक कहा। मैंने जो सुना उस पर मुझे विश्वास तो नहीं हो रहा था, लेकिन जो सुना वो मैंने स्पष्ट सुना। सर्वश्रेष्ठ छात्र का पुरस्कार मुझे ही दिया जा रहा है। मैंने मंच की ओर देखा। अध्यापक मुझे आगे आने का इशारा कर रहे हैं। मैं बेतहाशा धड़कते अपने दिल को थामने की कोशिश में जुटा हूं। स्कूल के बाहर 12 वर्षों में मैं आज तक कभी भी मंच पर नहीं गया, लेकिन आज जब मैं स्कूल के अंतिम पड़ाव पर हूं, तब आखिरकार मैंने स्वयं को सिद्ध कर ही दिया। मैं किसी से कम नहीं,
मैं इन्हीं भावनाओं में डूबा अपनी बैसाखियों पर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था कि अबे इसे तो इनाम इसलिए मिला है क्योंकि ये लंगड़ा है। मुझे पीछे बैठे एक सहपाठी की आवाज सुनाई दी। पुरस्कार मिलने की खुशी में धड़कता मेरा दिल जैसे अचानक रुक गया। अचानक मैंने अपने चारों ओर उसी सन्नाटे और खालीपन को महसूस किया जो इस तरह की बातें सुनाई देने पर मुझे अपने आगोश में ले लेता है। मुझे लग रहा था कि जैसे मेरा दिमाग सुन्न हो गया हो, मानो किसी ने मेरे वजूद को एक झटके में मिटा दिया हो। यहां सबके सामने आ जाओ ललित, मंच से आई अध्यापक की आवाज ने मुझे अचानक आधम के उस सन्नाटे से निकाला और मैं अपने चीखते मन को बैसाखियों पर ढोते हुए मंच की ओर बढ़ने लगा। छात्रों ने अनमनी सी तालियां बजाकर मेरा स्वागत किया। इसके कुछ देर बाद छात्रों के बीच समोसों के लिफाफे बांट दिए गए। अध्यापक भी प्रिंसिपल महोदय के कमरे में चाय नाश्ते के लिए चले गए और सभी छात्र अपने अपने लिफाफे से चीजें निकाल कर खाने लगे। लेकिन मुझे उस सन्नाटे ने फिर से घेर लिया था। मैदान के कोने में बैठा मैं मन ही मन रो रहा था। 12 वर्षों की बेहद कड़ी मेहनत के बाद आज मुझे सर्वश्रेष्ठ होने का खिताब मिला था, लेकिन समाज की निगाह में इस खिताब को हासिल करने वाले ललित और उसके द्वारा लांघी हजारों बाधाओं का कोई अर्थ नहीं था। समाज की नजर से देखें तो जो बैसाखियों पर चलता है उसे पुरस्कार केवल इसलिए मिलता है क्योंकि वो दिव्यांग है। अरे कोई दिव्यांग व्यक्ति भी किसी ऊंचाई को छू सकता है, ऐसी कोई कल्पना मेरे समाज में हो ही नहीं सकती थी। मेरे किसी भी सहपाठी का जीवन उतना कष्टप्रद नहीं था जितना मेरा था। मेरे किसी भी सहपाठी ने स्कूल की पढ़ाई पूरे करने के लिए इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मुझे करनी पड़ी थी। मेरे किसी भी सहपाठी को अपना मन नहीं मारना पड़ा था। पढ़ाई के लिए अपने शरीर को तोड़ना नहीं पड़ा था। लेकिन फिर क्यों मेरे सहपाठी मुझे ताना देते रहे? मैदान के एक अकेले कोने में बैठे हुए मैंने निश्चय कर लिया कि मैं उस सहपाठी को गुस्सा जताकर कोई उत्तर नहीं दूंगा। अध्यापक मान चुके हैं कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अब मुझे अपने उस सहपाठी को भी ऐसा जवाब देना था जिसे वो चाहे भी तो नकार न सके। और बोर्ड की परीक्षा निकट थी, मुझे स्वयं को सिद्ध करना था और मैंने ठीक वही किया। बोर्ड की परीक्षा में अपनी कक्षा में मुझे सर्वाधिक अंक हासिल हुए। मैंने सिद्ध कर दिया कि मुझे मिला वो पुरस्कार किसी की सहानुभूति नहीं था। ये छोटी सी घटना किसी भी विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति के लिए जीवन की कठिनाइयों और हमारे समाज की विकलांगता या दिव्यांगता के प्रति दृष्टिकोण को रेखांकित करती है। विकलांगता और समाज के रवैये के विरुद्ध लड़ाई केवल अथक परिश्रम और इच्छा शक्ति के बल पर ही जीती जा सकती है। ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन, ये कविता आती है, कविता के अंश है दुष्यंत कुमार की, कि ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन, ये यातना केवल किताबों में पढ़ी है। ये लड़ाई जो कि अपने आप से मैंने लड़ी है, ये घुटन, ये यातना केवल किताबों में पढ़ी है। ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते, इरादों ने जो चढ़ी है। ये पहाड़ी पांव क्या चढ़ते, इरादों ने जो चढ़ी है। कल दरीचे में ही बनेंगे द्वार, जिंदगी ने कर लिया है स्वीकार। अब तो पथ यही है, अब तो पथ यही। बहुत धन्यवाद। ये मैं नहीं, ललित कुमार जी बोल रहे थे। चलिए बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। बचपन कैसा रहा ये आप पुस्तक में पढ़ पाएंगे, बट मोटे तौर पे वो किस तरह का समाज था जिसमें मेरी स्कूलिंग हुई, वो शायद इस 31 से आपको समझ में आया होगा, कुछ उसका आइडिया मिला होगा। बचपन काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा। 4 वर्ष की उम्र में मुझे जब पोलियो हो गया और हमारा जो फैमिली बैकग्राउंड रहा वो कोई बहुत
रिच नहीं था कहेंगे, और एजुकेशन हमारे परिवार के इतिहास में कभी नहीं है। मैं अपने परिवार के इतिहास में पहला ग्रेजुएट हूँ, मुझसे पहले कभी कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ था। तो इससे पता लगता है कि किस तरह के परिवेश में मेरा बचपन बीता, और जब उसमें विकलांगता जब ऐड हो जाती है तो किस तरीके से एक बच्चे का जीवन बदलता है, उसकी साइकोलॉजी बदलती है, उसकी ज़रूरतें बदलती है, उसकी मानसिकता बदल जाती है। इसी का जिक्र मैंने इस किताब की शुरुआत में किया है। और क्या कहूँ, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट था। ख़ास तौर पे जो शुरुआती प्राइमरी स्कूल का जो समय होता है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, क्योंकि बच्चे बुली बहुत करते हैं। सो शुरुआती जो 5 साल थे वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहे। फिर जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, समय आगे बढ़ता है, चीज़ें थोड़ी बेहतर होनी शुरू होती है। लेकिन ये बात भी दुर्भाग्य से ये सच है कि जब आप वयस्क हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, जब आपसे अपेक्षा की जाती है कि अच्छा अब तो हम समझदार लोगों के बीच में जी रहे हैं, तब भी चीज़ें पूरी तरह से नहीं बदलती। ये दुर्भाग्य है। तो विटामिन ज़िंदगी मैंने लिखना शुरू किया था 2011 में, और इसको लिखने के पीछे जो इरादा था वो सिर्फ इतना था कि मुझे लगा कि जीवन बहुत मुश्किल रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है। जाने किस दिन मैं चला जाऊं यहाँ से, तो एक डॉक्यूमेंट पीछे रहना चाहिए। अब जाने की बात नहीं करेंगे। हम आप दरअसल मैं आपकी शुरुआती वर्षों की बात कर रहा था। हम आज तक पढ़ेंगे हाँ। उस तरफ जिंदगी के उस किनारे की तरफ भी, लेकिन पहले सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा इसके साथ साथ जी, आपके बचपन के साथ साथ कि क्या आपने अपनी उस क्षमता को कैसे जाना जो ये सामान्य से या असामान्य से असाधारण होने की जो क्षमता आप में रही, उसकी पहचान कैसे हुई आपको? ये संयोग है कि कल ही किसी ने मुझसे सवाल किया था, और मेरा जवाब यही था कि मुझे नहीं मालूम क्यों था, कैसे था, पर हाँ कुछ चीज़ें ज़रूर मेरे बचपन में ऐसी रही जो कि मैं भी आज मानता हूँ कि बहुत अलग थी। जैसे चौथी क्लास में मैंने 2-3 ऐसे काम किए, 2-3 ऐसे निर्णय लिए जो कि मुझे लगता नहीं कि सामान्य रूप से कोई 4th क्लास का कोई स्टूडेंट करेगा। एक तो ये कि मैं हिंदी मीडियम का विद्यार्थी रहा था, तो हमारी हिंदी की किताब में एक चैप्टर था जाति प्रथा के बारे में। तो वो जब हमने स्कूल में पढ़ा तो मुझे पता लगा कि अच्छा हमारे समाज में जातियाँ होती हैं। तो मैंने घर जाके पूछा कि हम कौन सी जाति के हैं, तो हमको बताया गया कि हम ब्राह्मण हैं। और किताब में मैंने पढ़ा था कि ब्राह्मणों ने शूद्रों के साथ बड़ा खराब व्यवहार किया। तो मैं उस समय तक अपना जो नाम लिखा करता था वो ललित कुमार शर्मा लिखा करता था, तो मैंने शर्मा डिलीट कर दिया, और उसके बाद से मैं ललित कुमार हूँ। और एक और पाठ था हमारी उसी हिंदी की किताब के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में, यूनाइटेड नेशंस के बारे में। उसको पढ़ के मुझे लगा कि कितनी अच्छी जगह है, सब लोगों को बराबर मानती है, पूरे ग्लोब को एक मानती है, देशों के बीच में कोई विभाजन नहीं मानती, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं जब बड़ा हो जाऊंगा ना तो मैं वहीं पे काम करूँगा। तो और फिर एक दिन ऐसा आया भी जब मैंने यूनाइटेड नेशंस के साथ काम भी किया। तो ये कुछ चीज़ें थी, मुझे नहीं मालूम कि ऐसा क्यों था कि ये सारी चीज़ें मैंने की, बट जस्ट हुई। आप पोलियो जैसी बीमारी से ग्रसित रहे हैं, आपको कभी निराशा नहीं घेरा? बहुत घेरा। मैं अगर ये कहूँ कि कभी नहीं घेरा तो ये तो झूठ बात होगी। उसमें से कैसे निकलेगा? देखिए, मैं फिर से इस बात को रिपीट करूँगा कि जो छोटा बच्चा होता है, जो बचपन का समय होता है, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके पास वो मेंटल स्ट्रेंथ नहीं होती। तो वहाँ तो अगर मैं सच कहूँ तो रोने के अलावा और कोई आपके पास रास्ता नहीं होता। तो अगर आपको चोट पहुँचती है, जो कि डे टू डे बेसिस पर होता है, तो आप रो लीजिए,
और अगले दिन तक पहुंच जाइए, फिर अगले दिन फिर चोट लगेगी, फिर रो लीजिए, फिर अगले दिन पर पहुंच जाइए। लेकिन जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ती है, जैसे जैसे आप चीज़ों को समझना शुरू करते हैं, जैसे जैसे आपको आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, तो आप आपके भीतर एक चीज़ होती है विल पावर, वो धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू होती है। सबके भीतर नहीं हो पाती, लेकिन जो चाहते हैं कि उनके भीतर हो, उनके भीतर इच्छा शक्ति डेवलप होती है। और मेरे ख्याल से निराशा से लड़ने और उससे बाहर निकलने का सबसे सशक्त माध्यम और सबसे असरदार तरीका इच्छा शक्ति ही है। इसका मतलब है कि आपने संघर्ष भरे जीवन को कामयाबी की सीढ़ी बना डाला। ऑनेस्टली मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं कामयाब होऊंगा, या मैं ये भी नहीं जानता कि मैं आज कामयाब हूँ। मैंने किताब के अंदर लिखा है कि मैं असामान्य था और मैं असाधारण होना चाहता था, और मैं ये मानता हूँ कि मैं असाधारण था और मैं असामान्य था और मैं असाधारण हो गया हूँ। अब जब मैं ये शब्द लिख रहा था इस किताब के अंदर, तो मेरे मन में खुद ये प्रश्न था कि जब पाठक इसको पढ़ेगा वो कहेगा, अच्छा आप अपने आप को असाधारण मानते हैं। तो उसकी एक्सप्लेनेशन भी मैंने किताब में अगले सेंटेंस में लिख दी कि असामान्य क्या होता है, इस बात को समाज बहुत अच्छे से परिभाषित कर देता है। जो सामान्य नहीं, जो सबके जैसा नहीं, वो अलग है, वो असामान्य है, एबनॉर्मल है। लेकिन असाधारण कौन होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कौन होता है, उसकी कोई परिभाषा नहीं है। चूंकि उसकी कोई परिभाषा नहीं है, तो हम अपनी परिभाषा खुद बनाएंगे। मैं मानता हूं कि मैं असाधारण हूं, इसलिए मैं असाधारण हूं। बहुत अच्छा। आपके मन में कैसी उथल पुथल चल रही थी कि आपने सफलता के अनेक मंत्र आप करते चले गए, जिसका जिक्र इस किताब में भी आता है? वो क्या था? What was that upheaval जो है, वो उथल पुथल आपके मन में रही तमाम, जैसा कि रिफ्लेक्ट होता है, वो क्या रही? इस प्रश्न को मैं ठीक से समझ नहीं पा रहा हूँ। आप मैंने ये सफलता के मंत्र, आपके जो किताब में एक मोटिवेशनल चीजें आती हैं बहुत सी, जो सफलता के मंत्रों को परिभाषित करती हैं, मतलब वो किस तरह से आपके मन में वो बात कैसे आई कि मुझे समाज के प्रति या समाज को ये सब देना है, ताकि वो भी किसी भी ऐसी संघर्ष से जूझते हुए सफलता को प्राप्त कर सके? देखिए, फिर से एक बार सच बोलता हूँ, जब हम जी रहे होते हैं, हाइंडसाइट में हमको बहुत सारी चीज़ें ऐसी लगती है, अच्छा हमने ये मंत्र इस्तेमाल किया, लेकिन जब हम जी रहे होते हैं तब कोई मंत्र नहीं होता। उस समय आप जब प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो जो मोमेंट आपके सामने है, जो सर्कमस्टेंसेस आपके सामने है, जो परिस्थितियाँ आपके सामने हैं, बस उनसे डे टू डे बेसिस पर आपको जूझना है, उनका पार पाना है, और आपके मन में जो लक्ष्य आपने स्थापित किया है, जैसे मैंने चौथी क्लास में लक्ष्य स्थापित किया कि मैं कभी ना कभी यूनाइटेड नेशंस के साथ काम करूँगा, तो वो चीज़ दिमाग में है, पर ऐसा नहीं है कि मैं रोज़ सुबह उठ के उसका जाप करता हूँ या उसकी आरती करता हूँ, पर वो एक चीज़ है जो कभी दिमाग से निकलती नहीं। जैसा कि किसी ने कहा है, शायद कलाम साहब ने कहा था कि सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। इस तरह के जब एक बार लक्ष्य स्थापित हो जाते हैं तो आप वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर जब पीछे मुड़ के देखते हैं तब आपको ये लगता है, अच्छा ये मंत्र था, पर ऐसा कुछ होता नहीं है मेरे ख्याल से। हाँ, ये जरूर है कि जीवन में एक मुकाम, एक पड़ाव ऐसा आता है जहां आप वास्तव में जानकर चीजें करते हैं, क्योंकि तब तक आप बहुत कुछ चीजें समझ चुके होते हैं। जैसे आजकल जो मैं कर रहा हूँ, या क्यों मैंने विटामिन जिंदगी, जो कि मैंने एक प्राइवेट दस्तावेज के तौर पर लिखी थी, क्यों मैंने उसको प्रकाशित किया, ये एक जानबूझकर लिया गया निर्णय था, क्योंकि मुझे लगा कि मेरे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जो समाज के लिए उपयोगी है, और अगर एटलीस्ट समाज के लिए उपयोगी नहीं भी है तो भी विकलांगजन के लिए ज़रूर उपयोगी है, और उन्हें जानना चाहिए इस बात को। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो जानबूझकर की जाती हैं, इन्हीं को आप शायद मंत्र कह सकते हैं।
यानी अनुभवों की अनुभूतियों से ही सफलता के मंत्र जो है गढ़े जा सकते। बिल्कुल। अच्छा, एक आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि शिद्दत से सीखने की कला को कैसे साधता है? आप कवि भी हैं और इस तरह के संस्मरण भी लिखते हैं, तो इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश आप डालना चाहें। फिर से वही बात है कि आप चाहते क्या हैं। मुझे लगता है कि आप जो चाहते हैं और शिद्दत से चाहते हैं कि ये हो जाए, वो हो जाता है। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपकी चाहना जो है वो कितनी स्ट्रांग है। इसका एक उदाहरण मैं दे सकता हूँ कि चूँकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था, तो 10वीं क्लास तक मेरी शिक्षा हिंदी मीडियम स्कूल में हुई। 11वीं क्लास में जब मैंने एडमिशन लिया तो मैंने साइंस में एडमिशन लिया, क्योंकि मुझे विज्ञान बहुत पसंद था। लेकिन जब मेरे सामने विज्ञान की किताबें आई तो वो सारी इंग्लिश में थी, तो वो तो मेरे लिए मतलब चाइनीज़ या मे बी ग्रीक की तरह थी। मुझे बिल्कुल नहीं आता था, इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी। लेकिन चूंकि मुझे विषय पसंद है, इसलिए मैंने सोचा जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन पढ़ेंगे साइंस। अब आप ये सोचिए कि हम एक ऐसा सब्जेक्ट पढ़ने का विचार बना रहे हैं जिसकी लिपि तक आप ठीक से नहीं पढ़ पा रहे हैं। मैं लिपि की बात कर रहा हूँ, मतलब हम पढ़ भी नहीं पाते थे 10वीं क्लास में, हम ऐसे स्कूल्स में पढ़े। सो 11वीं क्लास में एडमिशन ले लिया, पर चूंकि मैं चाहता था कि मैं वो करूं और उसके लिए मैंने पूरी मेहनत की और ये तय रखा कि ये करना ही करना है। तो 11वीं और फिर 12वीं क्लास होता है। बोर्ड मतलब कि, और मैं सीबीएसई से पढ़ा था, स्टेट बोर्ड नहीं था कोई। सीबीएसई बोर्ड था, साइंस का सब्जेक्ट था। केवल 2 साल उस लिपि को, उस लैंग्वेज को समझने के लिए मिलते हैं साइंस जैसे सब्जेक्ट में। और मैं 12th में न केवल पास होता हूँ, न केवल मैं फर्स्ट डिवीज़न लेके आता हूँ, बल्कि मैं क्लास में टॉप करता हूँ। तो आप अगर चाहते हैं तो चीज़ें हो जाती हैं। सही। अक्सर हम देखते हैं और सुनते भी हैं कि जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं वो डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अवसाद की स्थिति में चले जाते हैं, और इस स्थिति में वो अपनी और दूसरी क्षमताओं को भी नहीं पहचान पाते हैं और अक्षम हो जाते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? वो क्या, जो क्रिएटिविटी का जो स्पार्क है, वो उस किस्म के बच्चे किस तरह से हासिल कर सकते हैं कि नहीं सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी भी बहुत कुछ है, पहचानिए अपने आप को। इसका एक तो मैं फिलोसॉफिकल आंसर दे सकता हूँ, एक थ्योरेटिकल आंसर दे सकता हूँ और एक प्रैक्टिकल आंसर दे सकता हूँ। नहीं, तीनों के लिए समय नहीं है, तो मैं प्रैक्टिकल दे देता हूँ। वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो प्रैक्टिकल बात ये है कि बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स की। अगर वो अपनी पढ़ाई को लेकर अवसाद में होते हैं तो अक्सर हमें बच्चों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमको पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। In most of the cases, it is the parents who force them to study a subject which they don't like. ये एक फैक्ट है, इसीलिए मैंने इसको प्रैक्टिकल आंसर कहा है कि अगर कोई बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर क्षमता नहीं है। जस्ट ये है कि जो वो पढ़ रहा है, जो आप उसे करने के लिए कह रहे हैं, उसमें उसका मन नहीं लगता। कोई दूसरी चीज़ है जिसमें उसका मन लगता है। तो हमारे यहाँ पर, हमारे समाज में ये एक बड़ी समस्या है कि सफलता की एक ऐसा सांचा, एक ऐसी परिभाषा गढ़ दी गई है कि आप उसमें फिट हैं तो आप सफल हैं, वरना तो आपका तो जीवन ही बेकार है। हाँ, अगर आप डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर से नीचे कुछ बने तो फिर तो बेकार है। आईएएस ठीक है, चलेगा, लेकिन आपकी 5-7 लाख रुपए सैलरी जब तक ना हो जाए पर प्रति माह, तो वो सफल नहीं है आप। लेकिन मेरा ये मानना है कि जैसा मैंने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं असाधारण हूँ, तो मैं असाधारण हूँ। मैं किसी से सर्टिफिकेट लेने नहीं जाऊँगा, मैं किसी से ये नहीं पूछूंगा कि अच्छा क्या मैं साधारण हूँ, क्या मैं सफल हूँ। किसी ने मुझसे प्रश्न किया रायपुर में कि, और वो एक ऐसा ही स्टूडेंट था, ग्रेजुएशन का, वो अपनी स्टडीज़ के प्रति बहुत यूँ कहिए कि निराश है।
वो जो सब्जेक्ट वो पढ़ रहा है वो उसको पसंद नहीं है। तो उसने मुझसे पूछा कि मैं फिर सफल कैसे बनूंगा। तो मैंने उसको वही जवाब दिया कि तुम अगर मानते हो कि तुम सफल हो तो तुम सफल हो, वास्तव में सफल हो। जस्ट ये है, अगर स्टूडेंट्स को, बच्चों को माँ बाप और टीचर अपना रास्ता लेने दें तो यकीनन हमारे देश में एक तो वैरायटी आएगी, क्वालिटी आएगी। आप देखिए, रिसर्च के आधार पे प्रमाणित है कि हमारे देश के 60% ग्रेजुएट्स अनएम्प्लॉयबल होते हैं। अब इससे बड़ी त्रासदी क्या होगी? हम थोक के भाव में ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स और डॉक्टर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन वो अनएम्प्लॉयबल हैं। तो क्या हम केवल क्वांटिटी पर ध्यान दे रहे हैं, क्वालिटी पर ध्यान नहीं दे रहे? सो कहीं ना कहीं तो हमको उसका कारण ढूंढना पड़ेगा। और वो कारण जो है, जैसे मैंने कहा, प्रैक्टिकल जवाब है, वो पेरेंट्स से वो शुरुआत होती है। जितने केसेस में मैंने देखा है, प्रॉब्लम वही होती है कि पेरेंट्स और टीचर्स अपनी अपेक्षाओं का बोझ बच्चों के सर लाद देते हैं, और बच्चा जो है चल जाए तो ठीक है, नहीं चले तो उसके ऊपर टीका लगा दिया जाता है, तुम असफल हो। अब टीका लगेगा तो अवसाद में नहीं जाएगा तो क्या करेगा बेचारा? सच है ये। अब मैं एक बड़ा सीधा प्रश्न था आपसे कि भारतवर्ष में दिव्यांगता को किस नजरिए से देखा जाता है, और हम लोग क्या कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, सरकारी स्तर पर, और दूसरे तमाम जो NGOs हैं जो ये बहुत कुछ इन चीज़ों के बारे में बोलते तो हैं, लेकिन असल में क्या हो रहा है? आपको क्या दिखता है कि हिंदुस्तान में ये बदलाव आ रहा है ऐसे लोगों के प्रति जो समाज का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, जिन्हें क्या उनको हम वो मौके फराहम करवा रहे हैं, दे पा रहे हैं? आपको मत है। दिव्यांगता को कैसे देखा जाता है, पहला प्रश्न ये है। तो इसका बहुत साधारण और बहुत सीधा सिंपल उत्तर है कि दिव्यांगता को हमारे देश में दिव्यांगता के तौर पर ही देखा जाता है। दिव्यांग शब्द से मुझे आपत्ति है, और जब ये शब्द इस्तेमाल पहली बार हुआ था, मैंने इसके खिलाफ बहुत कुछ लिखा भी था। बिना किसी कंसल्टेशन के, बिना कोई राय मशवरा किए हुए एक शब्द हमारे सर टांग दिया जाता है जिसका कोई बेसिस नहीं है, जिसके बारे में किसी से कोई चर्चा नहीं की गई, सलाह नहीं ली गई, पर ठीक है, चलता है। सो दिव्यांगता को दिव्यांगता ही माना जाता है। अब क्यों मैं ये जवाब दे रहा हूँ? दिव्यांगता का आप मतलब समझिए। क्यों दिव्यांग कहा गया? कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसके अंग दिव्य हो, डिवाइन हो। विकलांग लोगों के साथ हमेशा से हमारे समाज में ये एक एलिमेंट जोड़ के रखा जाता है कि उनका भगवान के साथ शॉर्टकट संबंध है। ठीक है, उनके साथ उनको रोटी खिला दो तो हमारे तो मार्क्स बढ़ जाएंगे, उनकी कोई भी हेल्प कर दो तो हम तो सीधा स्वर्ग जाएंगे। सो हाँ, जब भी जाना होगा, इमीडिएटली नहीं, समय से। सो ये एक भाव है और इसको कोई नकार नहीं सकता। सो ये जो दिव्यांग शब्द है, ये उसी भाव को और ज्यादा रीइंफोर्स करता है। ये उसी चीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली, जाने अनजाने, उसी भाव को ज्यादा रीइंफोर्स करता है। क्यों? दीनहीन को, जो कमजोर है, विकलांग की ही बात नहीं है। मैं तो अक्सर इस बात को, अक्सर क्या, हमेशा मैं इस चीज को कभी कहना भूलता नहीं हूँ कि हमारे देश में स्त्री होना भी एक विकलांगता है। सो बात विकलांगता का हमेशा ये मतलब नहीं होता है कि कोई व्हील चेयर पे बैठा है, या कोई बैसाखियों से चल रहा है, या किसी का कोई हाथ या पैर कट गया है, कोई बोल नहीं पा रहा है, कोई देख नहीं पा रहा है। विकलांगता का अर्थ ये भी है कि उसका बेसिकली अर्थ ये है कि आप बराबर नहीं है, और बराबर तो स्त्री भी नहीं मानी जाती। आप चाहे उसके ऊपर एक अलग बहस हो सकती है, लेकिन जो फैक्ट है वो है। सो ये एक बहुत बड़ा एक हमारे समाज के साथ प्रॉब्लम है
कि कोई भी जो व्यक्ति कमज़ोर है उसको बहुत ज़्यादा अलग करके देखा जाता है, और इसी वजह से ये दिव्यांगता और दिव्यता के भाव हमारे समाज में आज तक, अभी भी 2019, जल्दी हम 2020 में जाने वाले हैं, आज भी ये भाव जीवित हैं। और इस तरह जीवित हैं कि हमारी सरकार, चुनी हुई सरकार, एक नया शब्द हमारे साथ दे देती है कि अब तो हम आपको दिव्यांग कहेंगे। खुश हो जाएंगे? शब्द के साथ क्या सुविधाएं भी दे रहे हैं? अब अच्छा, जो दूसरा पार्ट था आपके प्रश्न का और जो आप अभी प्रश्न कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये सवाल मुझसे नहीं किया जाना चाहिए। इस सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। आपने पूछा कि क्या समाज बदल रहा है, आप ही बता दीजिए। बदल रहा है? नहीं बदल रहा। नहीं, ऐसा नहीं। मैं लेकिन हम मैं अपने मुझे लगता है कि बदलाव तो शुरुआत है। मैं अपने आंसर को बैक कर देता हूँ। जी। इनके विचार उसके समर्थन में मैं आपको कारण बता रहा हूँ क्यों नहीं बदल रहा है। देखिए, जिस बदलाव की आप बात करते हैं, जो बदलाव आपको दिखता है, वो केवल चंडीगढ़ में दिखता है, वो आपको दिल्ली में दिखता है, वो मुंबई में दिखता है, मेट्रो सिटीज़ में दिखता है, टियर 1, टियर 2 सिटीज़ में दिखता है। लेकिन किसी महापुरुष ने कहा था कि भारत गांवों में बसता है। आप जाइए गांव में, चलिए मेरे साथ, दिखाइए कहाँ है बदलाव। शायद आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ वो कहीं से भी शुरू हो, लेकिन अंततः उसको सारे समाज में पहुँचने की ज़रूरत है, उस बदलाव को, और शुरुआत तो होनी ही चाहिए। और वैसे मैं आपकी सफलता में आपका साथ देने वाले भी होंगे, उनका जिक्र करना चाहेंगे आप? बहुत लोग हैं। अब समय हमारे पास सिर्फ 10 मिनट है टोटल, और मैं 3-4 प्रश्न छोड़ूंगा। और पहला ये, ओके, सो लोग बहुत हैं। मेरे परिवार के सारे लोग हैं। किताब में पूरा जिक्र है। उन्होंने बहुत, उनका सबसे बड़ा जो मेरे जीवन में योगदान रहा वो ये कि उन्होंने मेरी पढ़ाई को कंटिन्यू कराया। ये भी होता है, जिन गांवों की मैं अभी बात कर रहा था, वहाँ विकलांग बच्चा अगर पैदा होता है या उसको पैदा होने के बाद कोई विकलांगता हो जाती है, उसको एक पशु की तरह, रियली पशु की तरह एक कोने में रख दिया जाता है। मान लिया जाता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। ना वो पढ़ता है, ना उसका कभी कोई आधार कार्ड बनता है, ना वोटर आईडी बनता है, कुछ नहीं। जस्ट उसके सामने रोटी रख दी जाती है। और ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, ये मैं ड्रामेटाइज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ। मैं मिलता हूँ ऐसे लोगों से। परिवारजन सबसे कहूँगा कि सबसे महत्वपूर्ण लोग रहे। फिर उसके बाद एक चीज़ ये भी रही कि समाज के साथ मेरा थोड़ा 36 का आंकड़ा रहा शुरू से, क्योंकि समाज नहीं चाहता था कि मैं आगे बढ़ूं ऑनेस्टली। क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि वो मन से चाहते थे कि तुम आगे मत बढ़ो। बेसिकली वो, उनकी मानसिकता अलग थी, मेरी मानसिकता अलग थी। तो जब मैं यूँ कहिए कि सोचने समझने लायक हुआ, तो मैंने एक चीज़ ये मानी कि मैं अपना समाज खुद बनाऊंगा। अमूमन लोग समाज किसको कहते हैं? रिश्तेदारों को कहते हैं, पड़ोसियों को कहते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मेरा समाज हर कोई है, क्योंकि मेरा संबंध हर किसी से है, ख़ास तौर पे उन लोगों से जिनको हम दोस्त कहते हैं। तो आज मेरे हज़ारों दोस्त हैं, वो मेरा समाज है। वो सब मेरे मैं जो भी करता हूँ उसको सफलता कहिए, असफलता कहिए, उसमें वो लोग मेरा पूरा साथ देते हैं। तो ये श्रेय सभी को जाता है। एक और छोटा सा प्रश्न कि साहित्य समाज को क्या देता है और आपने इसे क्यों चुना? साहित्य समाज को क्या नहीं देता है, आई थिंक उसके ऊपर फोकस किया जाए। सीधा बात करते हैं, विटामिन जिंदगी क्या देती है? विटामिन जिंदगी क्या देती है? देखिए, मेरा मानना ये है, मैंने कविता कोश की स्थापना की 2006 में, 2008 में गद्य कोश की स्थापना की, और 2017 में मेरे मन के अंदर ये प्रश्न आया कि आखिर साहित्य देता क्या है समाज को। क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी नहीं रहा, कभी भी मैंने साहित्य को उतने गहराई से पढ़ा नहीं। तो मेरा हमेशा से मानना ये रहा था कि साहित्य, खासतौर पे कविता, समाज को दिशा देती है, बेहतरीन
दिशा देती है, बेहतरी की तरफ लेके जाती है। पर 2017 में मेरे दिमाग में एक प्रश्न आया कि क्या वास्तव में आज ऐसा हो रहा है। एक समय था जब वंदे मातरम और सरफरोशी की तमन्ना जैसे गीतों ने समाज को एक दिशा दी थी, उसने हमें आज़ादी दिलाई। लेकिन आज या तो साहित्य इस लायक नहीं लिखा जा रहा कि वो समाज को गाइड कर सके, या समाज में ही कुछ बदलाव आ गया है कि वो साहित्य से गाइड होना नहीं चाहता। सो मेरा ये मानना है कि कोई भी किताब आप पढ़ना शुरू करें और जब आप उसको पढ़ना खत्म करें, जैसे ही आप किसी किताब से गुजरें तो आप बदल जाने चाहिए एक व्यक्ति के तौर पर। अगर कोई किताब आपको बदल नहीं सकती तो वो किताब कहीं ना कहीं अपने उद्देश्य में अधूरी रह जाती है। सो मेरा ये मानना है, विटामिन जिंदगी को आप पढ़ना शुरू करेंगे, आखिरी पेज तक पहुंचेंगे, यकीनन आप बदल जाएंगे। बहुत बहुत खूब। और एक अंतिम प्रश्न आपसे, प्रेम को कैसे परिभाषित करेंगे आप? इसी के साथ जोड़ देते हैं कि किस चीज से सर्वाधिक प्रेम है आपको? प्रेम से प्रेम तक आपकी बात करें। प्रेम मुझे सर्वाधिक प्रेम किससे है? ओके, पहले परिभाषा प्रेम की परिभाषा, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। लेकिन जहाँ तक प्रेम की बात है, उसका आंसर बहुत सीधा है। पता नहीं क्यों, पर मुझे हर व्यक्ति के साथ एक जुड़ाव महसूस होता है, हर जीव के साथ एक जुड़ाव महसूस होता है। तो मुझे तो लगता है कि मुझे हर किसी से प्रेम। घुमा दिया आपने, घुमा दिया, लेकिन अच्छा है, ये भी अच्छा है। घुमाया नहीं है, नहीं, ये सत्य भी है, सच बात, ये सच तो है ही, सच बात। मैं उस प्रेम से शुरू होके बाकी प्रेम की बात दूसरे प्रेम का बहुत धन्यवाद। अब मैं, हमारे पास सिर्फ 4 मिनट बाकी हैं और आप 4 प्रश्न तो कर ही सकते हैं फटाफट। एक ब्रेक थ्रू था, बिकॉज हम एक जाके कुछ नया भी पढ़ सकते थे, कुछ पुराना भी पढ़ सकते हैं। सो इट्स अ वंडरफुल मीडियम। एंड हाउ डिड यू, आपने कैसे सोचा उसके बारे में, और थोड़ा उसका जो जर्नी था कविता कोश? कविता कोश 2 मायनों में एक बहुत खास प्रोजेक्ट है। जो लोग नहीं जानते, कविता कोश एक वेबसाइट है, kavitakosh.org डोमेन पर। ये भारतीय साहित्य की सबसे बड़ी रिपोजिटरी है, ऑनलाइन रिपोजिटरी। ये 2 मायनों में खास है। एक तो ये कि ये एक बहुत बड़ी रिपोजिटरी है जहाँ सब लोग साहित्य पढ़ सकते हैं, नया भी पुराना भी। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण इसके साथ जो बात जुड़ी है वो ये कि बना कैसे। ये वॉलंटियर्स ने मिलकर बनाया है, इसके पीछे कोई पैसा नहीं लगा है, कोई संस्था नहीं लगी है, कोई धनाढ्य परिवार नहीं लगा है। मेरे जैसे लोग, रैंडम लोग, आप में से कोई उठकर अगर ये कहे कि हम काम करना चाहते हैं कविता कोश के लिए, अभी 5 मिनट में आप काम करना शुरू कर सकते हैं, योगदान देना शुरू कर सकते हैं। तो जिस तरह से विकिपीडिया आगे बढ़ता है, उसी तर्ज पर कविता कोश आगे बढ़ा है। अब ये एक बहुत ख़ास बात इसलिए है क्योंकि मैंने ये पर्सनली अपने अनुभव से जाना है कि भारत में साहित्य के लिए कोई स्वयं सेवा नहीं करना चाहता। वॉलंटियरिज्म वैसे भी कम है भारत में, उसकी जो कॉन्सेप्ट है वो कम। ओके नहीं, ऑफ कोर्स, मतलब ऐसा नहीं है कि ज़ीरो है, लेकिन बहुत कम। जैसे कविता कोश को चलते हुए 13.5 साल हो गए हैं। 13.5 साल में मुझे 13 बोल देते हैं, साढ़े तो नहीं हो सकते, तो 13 लोग भी हमें ऐसे नहीं मिले हैं, तो 13 वॉलंटियर्स भी ऐसे नहीं मिले हैं जो पूरी शिद्दत के साथ इस प्रोजेक्ट से जुड़ना चाहें। तो 13 से कम लोगों ने मिलकर ये प्रोजेक्ट पूरा किया है। पूरा क्या किया है, ये तो हमेशा चलने वाला काम है और हम धीरे धीरे इस पर काम करते ही रहते हैं। कोई और प्रश्न करना चाहते हैं? श्योर। ललित जी, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि डिसेबिलिटी इज द एबिलिटी इन डिस्गाइज, और आपने कहा कि दिव्यांगता, लोग सोसाइटी समझती है कि जो दिव्यांग है उसका ईश्वर के साथ डायरेक्ट संबंध है।
सो आपके पहले और दूसरे सवाल पे मैं जाती हूँ, जहाँ पे आपको पूछा गया कि ऐसी क्या चीज़ थी आपने आपने कब रिकॉग्नाइज किया कि आप में ये टैलेंट है, और आपने कहा आपको भी नहीं पता. या इन हाइंडसाइट यू कैन से दैट देयर वाज सम टाइम बट यू डोंट नो. सेकेंड, आपने कहा कि निराशा तो बहुत थी, लीप्स एंड बाउंड्स में थी, और आप रोए भी. उसी रोने में और उसी निराशा में हो सकता है कि इतनी इंट्रोस्पेक्शन हुई हो कि आप सीधा भगवान के साथ डायरेक्टली you got the link and you developed that talent in you which you would not have developed if that disability was not there. Yeah, do you believe that? And फिर आप ऐसा मत कहिए कि दिव्यांगता का ईश्वर के साथ संबंध नहीं है. सोसाइटी की अप्रोच गलत है. दिव्यांग को देखने की अप्रोच गलत हो सकती है, बट ईश्वर के साथ संबंध आपका सीधे सीधे है, फॉर श्योर है. Okay. That's the answer. You have to give the question now. हाँ, exactly. Exactly. Because you felt that it has been taken in a wrong way how the society looks at the disabled people. So I'm saying no, approach could be wrong, but then you people have some ability in disguise, and that is how many times we see that the disabled people, they transcend into something very different, which ordinary people, like many of the people we can't even think of. Like, you studied science, you got into literature, and now you are speaking before us. You are so, you have got the wisdom which ordinarily could not have been developed if you have not introspected, and that introspection happened because of disability. Yeah, but वो इंट्रोस्पेक्शन तो बिना डिसेबिलिटी के भी लोग कर ही लेते हैं. Rare है ललित जी, rare है. नहीं, आप जो कह रही हैं वो एसेंशियली वो बात सही है. इन एसेंस वो बात सही है कि जैसे कहा जाता है कि जो दुख होता है वो दो तरह से काम करता है. या तो वो दर्द देता है या वो बदल देता है. जब आप दुख में होते हैं, कठिन परिस्थितियों में होते हैं, तो या तो लोग दर्द पाते हैं, आंसू बहाते हैं, और कुछ लोग जो हैं उससे बदल जाते हैं, कायाकल्प हो जाता है, मेटामॉर्फोसिस हो जाता है. ये बात एसेंशियली ठीक है कि हाँ, दुख एक मौका तो देता है, पर वो सब लोग उसको कैच नहीं कर पाते. Otherwise, हर कोई ये भी नहीं कह सकता ललित जी that somebody has transcended from love to compassion, और आपको हर किसी के साथ वो attachment feel होता है, like which Mr. Kapoor could not feel, but you did feel. Yeah, so that is how you have transcended from that. जैसे आप सीधे सीधे आंसर दे रहे हैं. जी. दिव्यांग नहीं बोले तो क्या बोले? विकलांग. Thank you. Absolutely. I also want to ask you, why do you develop categorize and make it as a हेलो, मेरा नाम शर्मिता है और मैं स्पेशल बच्चों के लिए काम करती हूँ. आई हैव अ सन हु इज इन द ऑटिज्म फ्रेमवर्क, एंड आई रन एन एनजीओ फॉर all the people, all the challenged people, which means physically, mentally, as well as the people in the autism framework and other issues. आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन है. लोग डिसेबिलिटी, एबिलिटी, इसके बारे में काफ़ी डिस्कशन होती है. मैं इसको थोड़ा और आगे लेके जाऊंगी. कभी आपको ये लगा है कि आपका डिसेबल होना आपके लिए लकी रहा है या एडवांटेजेस रहा है लाइफ में? नहीं, कभी ऐसा नहीं लगा. कुछ लोग ऐसा इसको कई परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है, कई एंगल से देखा जा सकता है इस बात को. कुछ लोग ये कह सकते हैं कि विकलांगता है तो इसलिए हमको मेट्रो में सीट मिल जाती है. नहीं, वैसे वाले की बात नहीं. पर वो जो एडवांटेजेस हैं, इवन मैंने वो भी कभी नहीं ली हैं. पर उसके अलावा जो अभी यहाँ बात कही गई थी कि विकलांगता आपको एक बहुत छोटा सा मौका तो ज़रूर देती है. और ये बात विकलांगता की नहीं है, कोई भी परिस्थिति, किसी भी विकलांगता ना हो, आपके जीवन में कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जिसकी में आप बहुत निराश हैं, अवसाद है, डिप्रेशन है, तो वो भी एक मौका होता है. पर क्वेश्चन वही है कि क्या आप उसको कैश करा सकते हैं. आप दर्द पाते हैं या बदल जाते हैं, बस बात उतनी ही रहती है. आई थिंक डिड आई आंसर योर क्वेश्चन?
Somewhat you answered. What I was saying that suppose I did not have a son who had autism. Okay. तो मेरी जिंदगी में ये पोर्शन आता ही नहीं, शायद मैं एबिलिटी के बारे में जानती नहीं, शायद मैं पढ़ती नहीं, शायद मेरा थॉट प्रोसेस ही नहीं होता, या डिफरेंट एबिलिटी को पहचानना है ना। तो मैं एक मौका था जब मेरा बेटा हुआ एंड उसके बाद आपको जब डायग्नोसिस मिलता है, और एक टाइम था कि वो ग्रॉस मोटर की उसको इश्यूज थी, तो हमें कहा गया था मे बी ही वुड नॉट वॉक और मे बी बैठने में भी प्रॉब्लम होगी। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो तब मैं अपने आप को डिसएडवांटेज या अनलकी समझती थी। विद द पैसेज ऑफ टाइम, एट द मोमेंट ही इज 18 नाउ, वो जो अनलकी था वो समहाउ हमारे लिए लकी बन गया, यू नो। सो आप पेरेंट्स की साइड से बात नहीं, मैं उसकी साइड से भी सेम चीज बात कर रही हूँ। पेरेंट्स I की wish he was here. साइड, देखिए पेरेंट्स की साइड से अगर हम इस चीज़ को देखें, वो एक्चुअली बहुत ज़रूरी भी है। ये अपने आप में डिसेबिलिटी डिस्कोर्स का अपना एक बहुत इम्पॉर्टेंट पहलू है कि पेरेंट्स कैसा फील करते हैं, एंड सिबलिंग्स सिबलिंग्स के साथ जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं उनका किस तरह का रिलेशनशिप रहता है, ये अलग बात है। पर पेरेंट्स की बात जहाँ तक है, अगर मैं अपने केस में कहूँ, जैसा मैंने कहा कि मैं अपने परिवार के इतिहास में पहला ग्रेजुएट बना, और ग्रेजुएशन के लगभग तुरंत बाद करीब 3 साल तक मेरी अलग अलग सर्जरीज हुई। मेरी 6 बार सर्जरीज हुई पोलियो को लेकर। तो मैं 3 साल तक बेड में रहा। उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया यूनाइटेड नेशंस के लिए, तो उसके बाद ये तो था कि मेरे परिवार के अंदर और संबंधियों के बीच में एक ये चीज़ तो आई थी कि अच्छा कोई तो है जो यूनाइटेड नेशंस में काम कर रहा है। क्योंकि हमारे यहाँ क्या कि जिस तरह की लोकेलिटी कह लीजिए, या जिस तरह का हमारा सर्किल है, उसमें स्कूटर मैकेनिक आपको मिल सकते हैं, आपको शॉपकीपर्स मिल सकते हैं, उससे ज़्यादा कभी कोई आगे पहुँचता नहीं। हाँ, अब तो एग्जैक्टली तो पेरेंट्स के लिए वो गर्व की बात है। पर वही बात है कि क्या हम उसको कैश करा पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं। इन मोस्ट ऑफ द केसेस लोग नहीं बढ़ पाते। अभी अच्छा, मैं एक छोटा सा रिफ्रेज करूंगी। जी। अगर आप डिसेबल नहीं होते, हाँ। है ना, आप फुली एबल्ड होते, डू यू थिंक यू वुड हैव बीन इन द सेम प्लेस टुडे? हाउ वुड आई नो? Maybe you would have been better. Maybe. Give the answer Maybe. like that. Maybe you would have been even better. No, it's not. I would say I don't Why know. not? I don't know. हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड कर देता हूँ। आई एम एक्सट्रीमली सेटिस्फाइड विद माई लाइफ। आई डोंट वांट टू चेंज इट। सो इफ समबडी सेज कि आप टाइम कैप्सूल में बैठ के वापस जाके अगर चेंज करें तो क्या करेंगे, तो क्या मैं चाहूँगा कि पोलियो ना होता? आई डोंट वांट टू डू दैट। इट्स फाइन। इट्स फाइन। ललित जी रह जाता कोई अर्थ नहीं। हाँ। तो आज आपको देख के मुझे लगता है आप जहाँ पहुँच गए हैं, अब पीछे जो कुछ हुआ उसका कोई अर्थ नहीं। रह जाता कोई है, उसको बार-बार सोचने की जी। ललित जी, मेरा नाम डॉक्टर विनय गोयल है जी। और मैं बाई चांस एक टीचर भी हूँ, नॉट बाई चॉइस। मैं डिग्री कॉलेज लाहौर अम्बाला शहर में पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ाता हूँ। और कुछ एक सिमिलरिटी मैं जब आपको सुन रहा था तो मैं रिलेट कर पा रहा था। जैसे आप एक साइंस स्टूडेंट होने के बाद लिटरेचर में आए हैं, तो वही हाल मेरा भी है। तो कॉलेज में कई लोग पूछते हैं कि भैया ये क्या तूने कॉकटेल बनाया है, कि कंप्यूटर साइंस पढ़ने के बाद, पीएचडी करने के बाद, नाउ यू आर इनटू उर्दू बेसिकली और हिंदी मिक्स कुछ मैं लिख पाता हूँ। तो जब मैं आपको सुन रहा था कि बचपन में जैसे आपने बताया कि लोग बुली करते थे या कुछ और बोलते थे, तो सिर्फ विकलांग लोग ही नहीं, जो एक एबल लोग हैं, नॉर्मल लोग हैं, वो भी इस बुली को सहते हैं। कोई रंग रूप पे सहता है, कोई हाइट पे सहता है। ऑफ कोर्स। तो आज भी मेरे कॉलेज में भी हम, कोई मुझे चश्मू कह देता है, कोई कालू कह देता है, कुछ भी। तो मैंने कुछ लिखा था तो मुझे वो याद आया, तो अगर हाउस की इजाज़त हो तो मैं पढ़ना चाहूँगा। ललित जी, मैंने लिखा था, ना आया इस शहर को गुफ्तगू का सलीका, ना आया इस शहर को
गुफ्तगू का सलीका ना आया, कतरा कतरा ही रहा, उसे समंदर बनना ना आया। ना मुस्कुराहट लबों पर, ना गर्म जोशी दिलों में, ना मुस्कुराहट लबों पर, ना गर्म जोशी दिलों में, ना आया उन्हें मिलने का तरीका ना आया, कतरा कतरा ही रहा, उसे समंदर बनना ना आया। तंग दिल सड़कें, मैं शहर की बात कर रहा हूँ, मुझे हर कोई ऐसा ही मिला। नहीं, अम्बाला नहीं, बोलने वाले, उनको मैं एक शहर मानता हूँ। तंग दिल सड़कें, खुश्क मिजाज गलियाँ, तंग दिल सड़कें, खुश्क मिजाज गलियाँ, ना आया इस शहर को जीने का तरीका ना आया, कतरा कतरा ही रहा, उसे समंदर बनना ना आया। अल्फाजों में नज़ाकत, ये बात मैं आपको सुनाना चाह रहा था। अल्फाजों में नज़ाकत और अकल में लियाकत, अल्फाजों में नज़ाकत और अकल में लियाकत, ना आया उन्हें ज़िंदगी का कायदा पढ़ना ना आया, कतरा कतरा ही रहा, उसे समंदर बनना ना आया। लड़की एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मैं लघु कथाएँ थोड़ी बहुत टाइम पास के लिए लिख लेता हूँ, या ये शायरी वगैरह। लोग अप्रिशिएट भी करते हैं कि अच्छा लिखते हो, और लिखो और लिखो। कई बार एक इंड्यूस्ड मुझे लिखना पड़ता है धक्के से, मेरा मन नहीं होता, मूड नहीं होता, तो जब मैं उसको पढ़ता हूँ लिखने के बाद तो मज़ा नहीं आता ये क्या लिखा है। तो लोग जब आपको फोर्स करते हैं कि नहीं ललित जी बहुत अच्छा लिखा है, और लिखिए, और जल्दी कब आ रही है अगली बुक, कब अगला कविता लिख रहे हो, तो क्या आपको भी ये इंड्यूस्ड राइटिंग परेशान करती है? नहीं करती है ये इंड्यूस्ड राइटिंग, क्योंकि मैं लिखता ही नहीं। तो और यही सही तरीका है लोगों के कहने से। देखिए, कुछ लोग होते हैं जो इतने टैलेंटेड होते हैं, साहिर और गुलजार जैसे, जो कहने पर लिख सकते हैं, फिल्म की डिमांड, सीन की डिमांड, उसके हिसाब से लिख लेते हैं। लेकिन अक्सर कविता जो है वो भाव से निकलती है, जैसा आप उस मोमेंट पे फील कर रहे हैं। मैं किसी ज़माने में कविता लिखता था, तो पिछले शायद 10 बरस में एक भी नहीं लिखी। क्यों? क्योंकि नहीं लिखा रहता, तो हम ज़बरदस्ती लिखते भी नहीं हैं। दैट्स ऑलराइट। लेकिन जो कॉकटेल वाली आपने बात कही ना, उसमें कोई इशू नहीं है। मैं तो समझिए 4-5 साल से ज़्यादा किसी करियर में टिक भी नहीं पाता। मेरा ये मानना है कि एक ज़िंदगी में अगर एक ज़िंदगी जी तो फिर क्या जी। तो कम से कम 10-12 तो जी लें। क्या क्या आपको 8 बजे के बाद 60 ml लेके कोई भी चीज ओके। ये भी एक तरीका है। आप लोगों के लिए है मैसेज ये। ललित जी, one more question. Lalit ji, my name is Lily Swaran. I'm also a poet and writer. जो आपसे बात सुनने से करने से समझ में आया कि आप में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ऑनेस्टी है, और एक इंस्पिरेशनल कैरेक्टर है आपके। आपने अपने आप को विल करके और अपना जो भी सोचा वो किया, दिन में सपना देखे वो भी किए, जो 4th क्लास में सोचे वो भी किए। तो मेरा आपसे एक सवाल है कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं स्कार्स तो रह गए होंगे, बुलिंग के, हर्ट के, इमोशनल हर्ट के, वो नज़र नहीं आते हैं आप में, लेकिन कहीं तो हैं। और अगर हैं तो अगर आप शेयर करना चाहें कि वो क्या ऐसी चीज़ें हैं। बिकॉज आई हैड अ यंग सन हु डाइड ऑफ कैंसर अ फ्यू ईयर्स अगो। वो जब बहुत छोटा था तो कभी कभी अपनी क्लास में अकेला सिख बॉय होता था जो पटका पहनता था, तो नर्सरी में जब घर आता था तो उसके बाल खुले रहते थे, पटका कहीं और होता था, और रोता आता था कि वाई एम आई दिस बॉय विद अ जूड़ा, आई एम डिफरेंट। So I want to know what are the scars, if they are, क्या वो अभी भी कभी कभी रिश्ते हैं, वो जख्म अभी भी कभी कभी कुरेदे जाएं तो दुख देंगे। आपके बेटे के बारे में जानकर दुख हुआ। शायद शायद होंगे ही, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पाता उनको। अरे वाह, that calls for a clap, that's amazing। मतलब आपने उनको आपको रोकने नहीं दिया, वो बार बार आते नहीं आपके जहन में। वो जो किसी ने बहुत बहुत बुरी बातें भी कही होती हैं ना, जैसे आपने लिखा है अपनी किताब में, उन्होंने पढ़ा है, लंगड़ा तो अक्सर ही सुना होगा आपने। तो क्या है जो कभी अभी भी आपको, जिसकी वजह से आपको लगता है नहीं
मैं और बेहतर करूँगा, किसी ने मुझे कभी ऐसा कहा था? आई थिंक लाइफ को मैं अपनी लाइफ को 2 फेजेस में बांट सकता हूँ। पहला फेज़ वो था जहाँ पर ये सारी चीज़ें मुझे दुख देती थी जी। बट उस दुख को मैं एनर्जी में कन्वर्ट करता था आगे बढ़ने के लिए। दूसरा हिस्सा वो है जहाँ मैं ऑलरेडी इतना एनर्जाइज्ड हूँ जी जी कि ना तो वो स्कार्स मुझे दिखाई देते हैं, ना अब लोग उस तरह से, एक होता है ना कि ये अनफॉर्चुनेट है बट हमारे देश में एक मुकाम पाने के बाद ही किसी को इज्जत देते हैं लोग। मतलब मैंने देखा है लोग अपने घर में जो डोमेस्टिक हेल्पर्स होते हैं उनसे सलीके से बात नहीं करते, किसी राह चलते किसी भिखारी से ढंग से बात नहीं करते। तो अगर आप इज्जत देना चाहें तो आप किसी को भी दे सकते हैं और देनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस समाज में आपको इज्जत पानी पड़ती है। हाँ, जैसे आप इस मुकाम पे आए हैं, मैंने देखा आप दरवाजे से अंदर आए, लोग साइड हटे हैं कि वो आ गए हैं ललित जी, तो सब एक तरफ नहीं, मतलब ये तब और अब में वो तो खैर इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ, तो वो थैंक यू वेरी मच अगेन, अ वेरी ऑनेस्ट आंसर, बहुत मेहरबानी जी। ललित यहाँ यार, मैं सवाल नहीं पूछूंगी तो जाएंगे कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। तो ललित, हम थोड़ा पीछे जाएंगे 10-12 साल, जब हम सबको बड़ा जोश चढ़ा था हिंदी ब्लॉगिंग का जी, हम लोगों का उतर गया। तो वो मुझे बताइए कि सच में क्या हिंदी ब्लॉगिंग का कोई फ्यूचर, जिससे अंग्रेजी ब्लॉगिंग ने उसके बाद स्पीड ली और अभी वो काफ़ी कुछ उससे मतलब ब्लॉगिंग इटसेल्फ, आई हैव अ फ्रेंड जो ट्रैवल ब्लॉग करती हैं और उन्होंने अपनी गूगल की जॉब छोड़ी और वो पूरा टाइम सिर्फ ट्रैवल ब्लॉग कर रही हैं और वो उसके सहारे अपनी ज़िंदगी चला रही हैं। हिंदी में कभी आप ऐसा कोई फ्यूचर देखते हैं? नहीं। और आपको याद होगा जब ब्लॉग वानी और वो सारा चल रहा था, उसके बाद हर दिन लोग देखते थे कि भाई कितने नंबर पे पहुंचा और क्या, वो सारा एक झटके से ख़त्म हो गया सारा सीन। मेरे ख्याल से 2, 4, 5 आप हो गए, अशोक पांडे, 4-6 लोग बचे हैं जो लिखते हैं अभी भी। तो वो उसके रिवाइवल के कुछ, क्योंकि आप टेक्निकली इन चीज़ों को ज़्यादा जानते हैं, तो एक तो वो मुझे बताइए कि क्या आने वाले टाइम में आप इसको कहीं देख रहे हैं हिंदी भाषा को ब्लॉगिंग में? जी। तो ये बताइए। और इसमें मैं छोटा सा एक किस्सा पढ़ रही थी जो आपने इनका सवाल उड़ा दिया था कि कॉलेज की लड़कियां, स्कूल की लड़कियां, तो उसमें कुछ बताने का मूड हो तो वो आपकी चॉइस है, बताइए। आप प्रश्न कीजिए तो मैं बता दूंगा। तो मुझे बताओ अपना प्यार कब हुआ? अब इतना डायरेक्ट सीधा बताओ। पर ये आपकी चॉइस है, बताना चाहे ना बताना चाहे। जो पहला आपका प्रश्न था उसको मैं बाद में आंसर करूंगा, मे बी सेशन के बाद, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, वो टेक्निकल मसला है। जो दूसरा प्रश्न है वो मुश्किल सवाल है। ओके, आपका क्या प्रश्न था? कितनी बार हुआ? 10-15 बार। तो ऐसा नहीं है कि प्यार तो मतलब किसको नहीं होता है, पर अब चूंकि आप लोगों ने मुद्दा उठाया है तो एक बात शेयर कर सकता हूँ मैं। इसके बारे में मैंने अभी 2-4 दिन पहले कहीं कुछ विकलांगजन को संबोधित किया था। उन्हीं ने मुझसे सवाल किया था कि विकलांगजन को शादी करनी चाहिए कि नहीं, और ये वो लोग थे जिनसे मैं रूबरू हो रहा था, तकरीबन 200 लोग जो कि गांव देहात से आते हैं। सो मैंने उनको कहा कि ऐसा कुछ नहीं है कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, करने का मन है तो कीजिए, नहीं मन है तो मत कीजिए। लेकिन जो पेच है वो कहाँ है? पेच इसमें है कि हमारे समाज में ये एक धारणा बैठी हुई है कि विकलांगजन को, किसी भी विकलांग व्यक्ति को विकलांग व्यक्ति से ही शादी करनी चाहिए, और इस तरीके का, चाहे वो खुले तौर पे कहे नहीं, लेकिन पुश उस तरफ ही दिया जाता है। मेरे हिसाब से वो कई मायनों में गलत है और इस चीज़ को बंद होना चाहिए। तो मैंने अभी तक शादी नहीं की है। लोग बोलते हैं आपकी शादी नहीं हुई, तो मैं उनको करेक्ट करता हूँ कि शादी हुई नहीं की नहीं। सो वो इसलिए क्योंकि मैंने
अगेन जैसा इस पुस्तक को अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें आप पाएंगे कि जीवन में मैं लगातार लक्ष्य साधता रहता हूँ। एक लक्ष्य बना लिया, फिर वहाँ तक पहुँच गए, फिर दूसरा बना लिया, कई बार ओवरलैप भी कर जाती हैं चीज़ें। तो एक लक्ष्य ये भी था कि ये जो शादी वाला मसला है, मसला तो है ही, बहुत बड़ा है भाई। तो जब मेरी उम्र 25 के आसपास थी तो उस समय जैसा होता है कि रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं, तो मैंने एक चीज़ नोट की कि जितने भी रिश्ते आते हैं अरेंज मैरिज में, वो सारे के सारे स्पेशल केसेस होते हैं। अब स्पेशल केसेस का मतलब ये नहीं कि वो केवल विकलांग लड़कियों के होंगे, वो डिवोर्सी हो सकती हैं, वो बहुत पुअर फैमिली से हो सकती है, वो तथाकथित रूप से कुरूप हो सकती है। हाँ, तो ये सब चीज़ें तो स्पेशल केस। तो मैंने जब इस पैटर्न को नोट किया तो मैंने ये डिसाइड किया कि आई एम नॉट गोइंग टू गो द अरेंज मैरिज वे। आई एम गोइंग टू मेक माई ओन डिसीजन, माई ओन चॉइस। और वो अगर इस जीवन के दौरान हो जाती है तो ठीक है, नहीं होती है तो कोई समस्या नहीं है, मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। तो ये चीज़ है और इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए समाज के अंदर से। और मैं बता रहा हूँ, ये चौथी बार मैं कलम प्रोग्राम में हूँ। इससे पहले मैं रायपुर, भुवनेश्वर और बिलासपुर गया था और वहाँ पर भी मैंने लोगों से कहा कि आप लोग सुन तो लेते हैं, एप्रिशिएट भी कर देंगे, किताब पढ़ेंगे, शायद आपको पसंद भी आ जाए, लेकिन क्या वास्तव में कोई चेंज आता है आपके भीतर, आपकी सोच के अंदर, आपके जीवन के भीतर? क्या आप, मैं ये कह रहा हूँ कि विकलांग लोगों को क्यों आप फोर्स करते हैं कि वो विकलांग लोगों से ही शादी करें? अगर आपका बच्चा किसी विकलांग लड़की से या लड़के से शादी करना चाहे तो आप उसको रोकेंगे, मेरी बात सुनने के बाद भी रोकेंगे। दैट्स द प्रॉब्लम कि हम एक मोमेंट एक्साइटमेंट का आता है, हमें लगता है कि हमें तो ज्ञान चक्षु खुल गए हैं हमारे, अभी हमें ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, लेकिन वो ज्ञान जो है रफू चक्कर हो जाता है, काफूर हो जाता है, उड़ जाता है। तो जो परमानेंट बदलाव है उसकी ज़रूरत है। मैं स्वाति, सबसे पहले तो शुक्रिया प्रभा ज्ञान फाउंडेशन का आज के इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, और थैंक यू कि मुझे भी यहाँ आने का मौका मिला। सवाल आखिर में पूछूंगी उससे पहले छोटी छोटी एक बात बोलना चाहूँगी। कविता कोर्स से हम सब जुड़े हैं जो कविता पढ़ने के शौकीन लोग हैं। एज अ पाठक आपने कहा कि कुछ लोग वॉलंटरली नहीं आना चाहते, तो मैं आज से आना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। क्योंकि वो एक ऐसी जगह थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी जगह थी जहाँ हम सभी कवियों को और सभी तरह की कविताओं को, भारतीय भाषाओं की कविताओं को एक्सेस कर सकते थे। तो ये बहुत सहूलियत वाली जगह होती है कि आप किसी भी कभी भी पढ़ना हो, किताब नहीं है आपके पास, आपको रात में नींद नहीं आ रही, आपको कुछ अच्छा पढ़ना चाह रहे, आप कविता कोश खोलिए और कुछ अच्छी कविताएँ पढ़िए, थोड़ा सा सुकून हासिल कीजिए। दूसरी बात ये कि सच और सही दो अलग चीज़ें हैं, हम हमेशा जानते हैं, कुछ लोग मानना नहीं चाहते, बट सच और सही का गैप बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। हम लोग एक दूसरे मानेंगे नहीं तो शायद सच को ही सही मान के जीने लगेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने सच और सही को अलग अलग करने का मतलब बहुत क्लैरिटी से, बहुत पूरी स्पष्टता के साथ यहाँ पे क्लियर किया उसके डिफरेंस को। सवाल ये था कि जब आप कह रहे थे कि शायद या तो दो सिचुएशन है, या तो साहित्य अब वो काम नहीं कर रही कि लोग बदलें उससे, या फिर लोगों ने तय कर लिया है कि हमें नहीं बदलना है। दोनों ही सिचुएशन को फिर कैसे डील किया जाए? आसान है। एक तो पहले पढ़ना शुरू कीजिए, अपने आप से प्रश्न कीजिए कि आपने कितनी किताबें पढ़ी साल भर के अंदर। तो एक तो हालांकि बड़े मंचों पे खड़े होके लोग अक्सर ये बोलते हैं कि पढ़ने की जो आदत है वो कहीं जा नहीं रही है, वो तो बढ़ रही है, पर फैक्ट इसके उलट है, लोग नहीं पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस इतनी अवेलेबल हैं, ख़ासतौर पे यंग जनरेशन में। मोबाइल है, टिकटॉक है और यूट्यूब है और फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है। तो एक तो ये है कि पढ़ना कम हो रहा है, तो पढ़ा जाना चाहिए। दूसरी बात, जो दूसरी साइड है, अदर साइड ऑफ द टेबल,
हिंदी की अगर मैं बात करूं तो हिंदी में कुछ पैटर्न्स मुझे दिखाई देते हैं। एक पैटर्न तो ये है कि लोग ऐसा साहित्य लिख रहे हैं या लिखना चाहते हैं जो उनको पॉपुलैरिटी दिला सके, जिसको आप पल्प फिक्शन कह सकते हैं शायद, तो उस तरह का। अब उसमें सब्सटेंस नहीं होता। सेम बात जैसे आजकल चलन है यूनिवर्सिटीज़ में लव स्टोरीज के बारे में लिखने का, तो आप बाज़ार में जाइए, आपको कम से कम 20 किताबें मिल जाएंगी। सेम थीम है, यूनिवर्सिटी का नाम बदल जाता है, लड़के का नाम बदल जाता है, लड़की का नाम बदल जाता है, कहानी सेम है। तो ये जो चलन है ये इसलिए ये हमारे जो अंग्रेज़ी के बड़े जाने माने लेखक हैं चेतन भगत, उनकी पॉपुलैरिटी के बाद ये हिंदी में आया है कि आप ऐसा लिखिए जो कि जिससे कि यंग जनरेशन कनेक्ट कर सके। अब जो कॉलेज जाता है उसको प्यार भी होता है, दिल भी टूटता है, और जब वो उसको पढ़ता है आई टू हैव ए लव स्टोरी, तो वो तुरंत उससे कनेक्ट करता है और वो सोचता है कि ये तो मेरे बारे में लिखी गई है, तो चीज़ चल जाती है। लेकिन क्या हम वास्तव में इसी डोमेन में घूमते रहना चाहते हैं? क्या हम जो बड़ी बातें हैं, जो वास्तविक जीवन की सच्चाइयाँ हैं, उनसे डील नहीं करना चाहते? तो ये दोनों ही साइड की बातें हैं और इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साइड पर जाती है। काफ़ी अच्छे ऑथर आए हैं आज, मिस्टर विनय कुमार, मिस्टर ललित कुमार, मिस्टर विजय कपूर. You guys have been really well entertaining for our audience, but what I really like the most is that we had a totally different author today. Someone who's gone through the real society of India and who knows what it is to be in this society. It's easy for anyone to say कि हाँ विकलांग लोगों के लिए इंडिया तैयार है, मगर मेरे हिसाब से बिल्कुल तैयार नहीं है और अभी बहुत बहुत काम बचा है यहाँ पर। एंड आप जैसे लोगों की हमको बहुत ज़रूरत है जो हमारी आंखें खोल सके और हमें बता सके you are extraordinary because you have the extra thing you got in you without getting that extra thing. So thanks so much for helping us today and to give us an eye opener. एंड मैं समझती हूँ जो आप कह रहे हैं कि हो सकता है हम सबको बहुत बड़ा इंसाइट मिला हो आज, हम तैयार हैं, हम अपने बच्चों को भी बोले, बट मैंने इसको एक ट्रू मात्रा में देखा है कि एक मेरी बहुत अच्छी आंटी थी जिन्होंने अपने बेटे को बोला, एक लड़की कैंसर सर्वाइवर थी, उसके बाल नहीं थे, तो आप सोच लीजिए एक लड़की जवान उम्र में बाल ना हो तो विकलांग ही हुए, ठीक है ना। उन्होंने इनकरेज किया अपने बेटे को कि बेटा यू गो एंड यू मैरी हर, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, इसके पीछे कुछ भी नहीं था, बस एक अच्छी लड़की है उससे शादी कर लो। एंड दिस केम फ्रॉम अ मदर एंड शी इज़ नो मोर दैट लेडी, शी वॉज अ प्रोफेसर इन अ यूनिवर्सिटी and very literate female, and she was able to do this, and she has a loving husband today and an amazing life, and it is something which is not impossible. It is possible to have a normal life. Thank you so much, sir, and thank you to our audience for the beautiful questions you've all asked. And of course, we have 3 winners, as usual, which we would like you to please distribute the bookmarks to. So, the first winner we would like to announce is Ms. Geetika. Thank you, Geetika. And why I got so confused between Vinay is because Vinay ji was running in my mind. So, Mr. Vinay from DAV. Yeah, very nice, amazing. Keep doing it. And get inspiration from within. That's the problem with the induced one, na? And then our third winner is Swati. A very relevant and very true question, क्यों पढ़े हम? Thanks so much, and we have a special. Okay, would you like to say something? Just 1 minute. Okay, because मैं आपके लिए एक छोटी सी अपनी कविता समर्पित करना चाहता हूँ।
कि कल रात चांद बटोर मैंने भीतर भेजा, कल रात चांद बटोर मैंने भीतर भेजा, सोने कोनों का करने मुआयना। अंधेरों से लिपटे कोनों ने चंदा को मामा नहीं पुकारा। बोले भूखे पेट धरती मां कहलाने लायक नहीं। हाथ में लिए पेट जीवन के सब रंग काले हैं। चांद चांद नहीं रहता, टूटते सपनों की चीतकार हो जाता है। और बंजर जन ही पैदा करते हैं जड़ों से जुड़ा संग्राम। केवल बंजर जन ही पैदा करते हैं जड़ों से जुड़ा संग्राम। शुक्रिया। Thank you, Vijay. I would also like to present the special memento to our author and of course our conversationalist. I did not get the time to figure out who could do that, but I have Miss Parul there. So she is one person who is representing Chandigarh today. So I think she's the perfect one. Vijay ji, of course, we've known for Yeah. Thank you so much. Ma'am, this side, please. Yes. Okay. Yes, sir. Thank you. Thank you. And I would thank you all for being here, and I now give the special privilege of collecting your signed book, and which is a life changer according to what we just heard. So please do connect it, and you can collect it from here. From here. Yeah. Thank you.